Standard 7 Social Science. Chapter number 1 Two Big States. First is Kannauj. Harshvardhan. King Harshvardhan was born in 606 CE. After the death of his father Prabhakarvardhan, Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. However, Rajyavardhan was killed by the king of God, Shashank. Their sister Rajyashree was imprisoned by the king of Malwa, Devgupta. Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वर. किंग हर्षवर्धन का जन्म 606 CE में हुआ था. उनके पिताजी प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को थानेश्वर का किंग बना दिया गया, जबकि राज्यवर्धन को कुछ टाइम के बाद गौड़ के किंग शशांक ने मार दिया और उनकी सिस्टर राज्यश्री को मालवा के किंग देवगुप्ता ने कैद कर दिया. इन सारे हालातों में उनके राज्य के लीडर्स की एडवाइस के बाद किंग हर्षवर्धन को थानेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई. इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, he decided to free his imprisoned sister Rajyashree. In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vindhya forest. He went in search for his sister, and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. Since Rajyashree's kingdom, Kannauj, was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler. Later, he defeated Devgupta, the king of Malwa. जैसे ही किंग हर्षवर्धन को राजा बना दिया जाता है, वो सबसे पहले अपनी सिस्टर राज्यश्री को फ्री करने के बारे में सोचता है. पर उसी टाइम ऐसा कुछ होता है कि राज्यश्री वो देवगुप्त के सैनिकों से भाग के विंध्या के फॉरेस्ट में चली जाती है. जब इस बात का पता चलता है तो हर्षवर्धन उसे ढूंढने के लिए विंध्या के जंगलों में जाते हैं. उस टाइम पे जंगल में जो लोग रहते थे उनकी और बुद्धिस्ट सन्यासी दिवाकर मित्र की हेल्प से वो राज्यश्री को सती होने से बचा लेते हैं. जब इस टाइम पे राज्यश्री की का जो राज्य था कनौज, उस पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और बाद में वो हर्षवर्धन देवगुप्त को हरा के मालवा का भी किंग बनता है. As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, Bhaskarvarman. With the help of a large army, he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of the Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victorious years, Thaneshwar emerged as a large kingdom in North India. शशांक पे अटैक करने की प्रेपरेशन में उसने कामरूप, जो कि अभी का आसाम है, वहाँ का किंग भास्कर वर्मन की हेल्प से एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई और इस आर्मी से उसने गॉड किंग शशांक को हरा दिया और उसकी जो किंगडम थी उसके ज़्यादातर हिस्से को अपने कंट्रोल में कर दिया. उसने उसके बाद मालवा और सौराष्ट्र को भी जीत लिया, बट वो पुलकेशी II, चालुक्य डायनेस्टी का जो किंग था, उसको हराने में अनसक्सेस रहा. अपनी सक्सेस के 7 साल बाद थानेश्वर अब एक बहुत बड़ा किंगडम, बहुत बड़ा राज्य हो गया था, जो कि नॉर्थ इंडिया में था. हर्षवर्धन्स रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. हर्षवर्धन पर्सनली supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into 3 parts. The first was for administrative purposes, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forget to have his meal. हर्षवर्धन अपने बड़े से एम्पायर को के डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स को खुद देखता था. उसने अपने डेली रूटीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था. पहला जो हिस्सा था
वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था, और दूसरे 2 पार्ट में से एक था पब्लिक वेलफेयर और दूसरा था रिलीजियस एक्टिविटीज़। वो इतना हार्ड वर्किंग था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कभी कभी वो टाइम पे खाना भी भूल जाता था। Imprints left by Harshvardhan. Harsh built many rest houses, wells, stepwells, lakes, mathas and viharas, and also prohibited animal slaughter. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. There he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at the time. हर्षवर्धन ने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेपवेल्स, लेक्स, मठास और विहारास बनाए थे। उसने एनिमल के शिकार के पे भी प्रतिबंध लगवाया था। वो हर साल एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट को ऑर्गेनाइज करता था, और हर 5 साल में वो एक बहुत बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज करता था प्रयाग में। वहाँ पे वो अपने पूरे एम्पायर का जितना भी खजाना है वो सब लूटा देता था जब तक वो खाली ना हो जाए। इवन वो जो गहने पहनता था उसे भी दे देता था। The great Sanskrit poet and writer Ban Bhatt adorned his court. His famous works Harshcharit and Kadambari are famous even today. We come to know about many important aspects of King Harshvardhan's reign from Harshcharita. King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, Nagananda, Ratnavali and Priyadarshika. महान कवि बान भट्ट उनके दरबारी थे। उनके फेमस वर्क हर्षचरिता और कादम्बरी आज भी फेमस है। अगर हमें किंग हर्षवर्धन के बारे में जानना है तो हर्षचरिता में उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। किंग हर्ष खुद एक राइटर थे और उन्होंने 3 प्ले लिखे थे, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाकी का लेसन अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।